میں ہوں آپ کا میزبان محتشم احتشام۔ کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے بہتر رابطہ سڑکوں کا ہونا انتہائی اہم ہے، کیونکہ سڑک ہی وہ بنیادی ذریعہ ہے کہ جس کی بدولت انسان اپنے طویل سفر کو مختصر کر سکتا ہے۔ جتنے بھی ممالک ترقی کر چکے ہیں ان کی ترقی میں بہتر سڑکوں کا اہم کردار ہے۔ ہندوستان کے تمام ریاستوں میں سڑکوں کی تعمیر کا سلسلہ مرکزی سرکار کی جانب سے جاری ہے۔ جہاں جہاں شہر آباد ہیں وہاں سڑکیں بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ میں بھی سڑکوں کا جال بنا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ یہاں کی سڑکوں کی ابتر حالت ہے۔ خصوصی طور پر دیہی علاقہ جات میں سڑکوں کی ناقص صورتحال کی وجہ سے عوام پسماندگی اور پسپائی سے دوچار ہے۔ ضلع پونچھ کے مختلف دیہی اور شہری علاقہ جات میں بھی سڑکوں کی ناقص صورتحال کی وجہ سے عوام شدید برہمی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سڑکوں کی ناقص صورتحال کی وجہ سے اسکولی بچے مریض پریشان ہوتے ہیں، وہیں حاملہ خواتین کو بھی کئی پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے ہسپتال تک پہنچنا پڑتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مرکز کی جانب سے وافر مقدار میں رقومات واگزار کیے جانے کے باوجود سڑکوں کی ابتر حالت ہے؟ انتظامیہ کی جانب سے سڑکوں کی مرمت اور تارکول کا کام کیے جانے کے باوجود چند ہی ہفتوں میں سڑکوں کی حالت دوبارہ ابتر کیوں ہو جاتی ہے؟ اس جیسے مختلف سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اضافی ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے پونچھ کے سیاسی سماجی شخصیات جن میں محمد فرید ملک صاحب اور لوکیش کمار شرما جی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ آپ تمام حضرات کا ہمارے اسٹوڈیو میں استقبال ہے۔ سب سے پہلے اضافی ضلع ترقیاتی کمشنر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ سرحدی ضلع پونچھ میں سڑکوں کی حالت بہتر بنانے اور جن علاقوں میں سڑکیں نہیں ہیں ان علاقوں کو سڑک رابطوں سے جوڑنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، آپ اس حوالے سے ہمارے سامعین کو تفصیلات۔ ضلع پونچھ ایک سرحدی ضلع ہے، تھوڑا فار فلنگ اور بیکورڈ ایریا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، جتنی بھی اسکیمز ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی، جیسے پردھان منتری سڑک یوجنا، نبارڈ کی روڈز ہیں، نیشنل ہائی وے بن رہے ہیں، نیشنل ہائی وے 144، تو یہ سب کام چل رہے ہیں۔ جو بھی گائیڈ لائنز تھی پردھان منتری PMGSY کی، اس کے اکارڈنگلی سارے ہیبیٹیشن کور کیے جا چکے ہیں۔ تو میں نہیں مانتا کہ یہاں پر سڑکوں کی کمی ہے۔ تقریباً جو بھی ایریاز ہیں سارے تقریباً کور کیے جا چکے ہیں۔ کچھ اگر رہ گئے ہیں تو آگے آنے والے نیکسٹ فیز میں ان کو ہم کور کر لیں گے۔ باقی رہی جو روڈ کی کنڈیشنز کی بات رہی، کیونکہ یہ پہاڑی ایریا ہے تو اس میں بارش کافی ہوتی ہے، اسے روڈ ڈیمیج کافی ہو جاتا ہے، اس کر کے تھوڑی دقت رہتی ہے۔ لیکن ہم پھر بھی جو ڈیفیکٹ لائبلٹی پیریڈ ہوتا ہے 5 سال کا، اس میں ان سے ریپیئر کرواتے ہیں اور ان کو ریگولرلی ریپیئر کرواتے ہیں، ان کو مینٹین کرواتے ہیں ان سے۔ سر بیسیکلی ہماری جو چنڈکتا منڈی سڑک ہے اس کے بارے میں ہمیشہ ہمیں شکایات ملتی رہتی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، خصوصی طور پر بڈھا امرناتھ یاترا، کیونکہ اس کے لیے بڑی سطح پر انتظامات کیے جاتے ہیں، ان میں اس سڑک پر بھی تھوڑا سا کام کروایا جاتا ہے۔ ہر سال اس سڑک کی مرمتی کا کام شروع ہوتا ہے، جو کہ صرف انہی مہینے کا جو ایک عرصے کا پیریڈ ہے اس میں وہ سڑک تھوڑا سا کام کی رہتی ہے، اس کے بعد اس کی وہی ابتر حالت ہو جاتی ہے۔ اس بار بھی سنا ہے کہ رقومات واگزار ہوئی، اس کے باوجود سڑک کی پوری طرح مکمل طور پر مرمت نہیں ہو پائی۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ چنڈک منڈی ہماری بڑی اہم روڈ ہے، کیونکہ یہ ہمارے پونچھ کو منڈی سے کنیکٹ کرتی ہے، اور وہاں پر ہمارا جو بوڈھا امرناتھ جی کا شرائن ہے، جیسے آپ جانتے ہیں یاترا ہر سال ہوتی ہے، وہاں پر ابھی بھی یاترا چل رہی ہے۔ پیچھے ہم نے اس کو پورا بلیک ٹاپ کروایا تھا، اور چونکہ اس کا ڈیفیکٹ لائبلٹی پیریڈ اوور ہو چکا تھا، اس کر کے ہم نے جو بچا کچا کام تھا لاسٹ ایئر بھی کروایا تھا ہم نے۔ اس بار ہم نے نئے طریقے سے 80 لاکھ روپیہ ہم نے اس کا ٹاؤن اینڈ سٹی روڈز میں ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے، اور ابھی پیچھے اس پہ کام ہوا ہے، ابھی یاترا سے پہلے ہی آلموسٹ وہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ وہی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، کیونکہ یہ پہاڑی ایریا ہے، یہاں پر تھوڑا ڈرینیج بلاک ہو جاتے ہیں بارش کے بعد، تو سارا پانی روڈ پہ آ جاتا ہے، اسے روڈ تھوڑے ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس بار ہم نے کوشش کی تھی، ڈویژن کمشنر صاحب IGP صاحب بھی یہاں آئے ہوئے تھے، ان کی ڈائریکشن کے مطابق ہم نے اس بار ٹھیکیدار کو پکڑ کے ہم نے پوری سپرویژن کے تحت بڑا اچھا کام کروایا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ابھی شکایت کا جلدی موقع نہیں ملے گا اس بار۔ اچھا فرید صاحب، آپ کیا کہیں گے اس چنڈک منڈی سڑک؟ دیکھیں، آپ کے سامنے ہمارے ایڈیشنل ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ
हमारे साथी मौजूद हैं और जैसे ये बता रहे थे, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि मंडी बूढ़ा अमरनाथ जो रोड है, इसके लिए हर साल सिर्फ जो है मुकम्मल तौर पर इस रोड को ठीक नहीं किया जाता। इस रोड को पैच लगाकर 80 लाख में क्या होता है या 1 करोड़ में क्या होगा, जबकि इस रोड का स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा है चंडक से मंडी। तो मैं समझूंगा कि हर बार हमें ये कहने पे क्यों मजबूर किया जाता है कि इस रोड को ठीक करो। हमारे यात्रा जो है वो बैरून रियासत से जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उनके लिए भी परेशानी का सबब बनती है। और फिर क्या यात्रा ही के टाइम ये रोड क्यों पैच लगाए जाएं, अदर टाइम में भी इन लोगों को जीने का हक है, यहाँ पर रहने का हक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है ये अफसोस है। हालांकि हमारी ज़िला तरक्याती कमिश्नर पौनचुन की सरबराही में पूरी टीम अच्छा काम कर रही है, लेकिन जहाँ तक रोडों का मसला है, रोडों की मैं आपको बताता चलूँ कि 2007-8 में सैलाब की वजह से एक रोड मेरी अड़ाई की ठीक हुई। 2014 में अचानक बादल फटने की वजह से रोड पूरी बह गई, वो PMGSY की रोड थी। 14 के बाद आज तक आप हिसाब लगा लें कितने साल हो गए। उस रोड का हर साल जो है वो कहा जाता है टेंडर लग जाएगा। इस बार ग्राउंड लेवल पर हुआ, उसका टेंडर लगा है, लेकिन रकूमात नहीं होती, जिसके कारण वो रोड जो है नहीं बन पाई। तो यही आप ले लें कि मंडी से लेके लोरन तक रोड की हालत क्या है। आप सब्जियां की हालत देखें, मतलब जहाँ जहाँ आप भी जाएंगे इस शहर के अंदर, रोड जो है वो आपने पहले ही बताया आपने शुरू से कि रोड हमारे लोगों के लिए एक बेहतरीन सुधार का एक रास्ता है। लेकिन किस तरह से हमारे बीमार जो है वो ज़िला अस्पताल या मंडी हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे जो एडिशनल ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ हैं, इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि बेहतर हो रहा है, हम भी बेहतर की उम्मीद रखते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि रकूमात जिस तरीके से वागुजार की जानी चाहिए हमारी यूटी गवर्नमेंट को, उस तरह से नहीं दी जा रही है, जिसके कारण हमारा जो इलाका है वो अभी तक जो है वो पैच पे, मतलब आज रोडों को जो है वो पैच के ज़रिए जो है वो जोड़ा लगाया जा रहा है। बारिश का जहाँ तक सवाल है, साहब ने कहा बेहतर, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बारिश से भी। लेकिन मैंने आपको एक मिसाल दी कि 2014 के बाद जो रोड अभी तक नहीं बन पाई, जिसको हमने गुजारिश करके ठेकेदार से थोड़ा बहुत ठीक कराया, लेकिन चलने के काबिल नहीं है और कई एक्सीडेंट उस रोड पे हो गए। हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की रैली थी जम्मू में, तो एक मेरे गाँव अड़ाई से एक शख्स अल्ताफ नामी जा रहा था, तो गाड़ी एक्सीडेंट हुई, वो मौके पर डेथ हुआ। तो वो कारण क्या थी? कारण रोड। तो कहने का मकसद ये है कि आज भी आप रोडों की हालत देखेंगे कि इंसान के चलने के काबिल रोड नहीं है। तो हमारी भी ये वक्तन फवक्तन जिला तरक्याती कमिश्नर या उनकी टीम से ये गुजारिश रहती है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि उस तरीके से फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं जिस तरीके से देने चाहिए थे, जिस तरीके से यहाँ के इलाके को ज़रूरत है। अब बूढ़ा अमरनाथ चंडक रोड आप ले लें साहब, तो जब यात्रा आती है हम आवाज़ उठाते हैं। अब छड़ी मुबारक कुछ दिनों में जाएगी, आप देखेंगे पैदल लोग जाएंगे तो उस रोड की 10 दिन पहले उसको पैच लगाए गए थे, आज उस रोड की फिर वही हालत है। तो जब वो हमारे यात्रा भाई हमारे जो मेहमान जाएंगे तो वो खुद ही बता देंगे कि क्या मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो पूरी तरह तरक्की का जो है वो गुहार लगाते हैं कि सबका साथ, सब विकास, सबका विश्वास। लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है आप देखेंगे। मैं इस पे ये नहीं कि जिला इंतजामिया को मुल्ज़िम इल्ज़ाम ठहराऊंगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से फंडिंग होनी चाहिए वो फंडिंग जो है हमारे यहाँ पर नहीं हुई है, जिसके कारण हमारी रोडों की जो वो खस्ता हालत है। तो मैं यही चाहूँगा कि आइंदा आने वाले वक्त में प्रोजेक्ट जो है एक ठेकेदार को आप 80 लाख का या 50 लाख का या 1 करोड़ का वो टेंडर लगाता है, तो वो ठेकेदार भी आप देखेंगे 1 करोड़ का अगर कोई किसी के पास टेंडर है वो 50 लाख पे जो है वो उस पर कर लेता है, तो उसी को मिल जाता है काम। तो उससे भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान लोकेश शर्मा जी, आप इत्मीनान रखते हैं कि ये जो इस बार के इंतजामिया की जानिब बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए, चाहे वो हिफाजती इक़दामात हों या हमारी सड़कों की हालत की बेहतरी हो या यहाँ ठहराए जाने का सिलसिला हो, क्या इससे आप मुतमईन हैं? पहले तो मैं फरीद साहब की बात से मुतमईन नहीं हूँ कि फंड की कमी है। जब से अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने 2002 में, तो उन्होंने एक स्कीम लाई थी PMGSY। PMGSY स्कीम ये थी कि हिंदुस्तान के अंदर जितना भी पेट्रोल डीजल बिकता है उसमें से 1 रुपया अगर आप अपने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ी में, कार में या ट्रक में 1 लीटर तेल डालते हैं तो उसमें से 1 रुपया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और उसके लिए रोड बनेगी। आज हिंदुस्तान के पास इतना पैसा है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। PMGSY में जो भी रोड बनती है उसके लिए करोड़ों रुपए पहले से ही जो है वो रख दिए जाते हैं। पहली बार हमने देखा है कि PMGSY रोड का जब भी, जो पहले हम देखते थे, मैंने जब छोटा था 200 रुपये रोड का काम शुरू हुआ, जी पैसा ही नहीं है। आज पैसा पहले एडवांस रखा जाता है। अगर 50 करोड़ की रोड बनती है, 50 करोड़ सेंक्शन होकर आता है पहले और उसके बाद रोड बनती है। दूसरी बात मैं आपको बता चाहता हूँ, नबार्ड स्कीम के तहत, नबार्ड स्कीम के तहत जितने भी स्कीम, नबार्ड एक बैंक है और वो ऑटोराइटली वो फंडिंग कर रहा है। तो जितने भी यहाँ से प्रोजेक्ट जाते हैं वहाँ से
से वो फंडिंग आपका 100 करोड़ का प्रोजेक्ट करेगा, 100 करोड़ पैसा है। यहाँ तक तल्लक है, ये लाइफ लाइन है हमारी चंडक मंडी रोड जिसको आप कहते हैं, ये नेशनल इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर बम्बे से भी लोग आते हैं, दिल्ली से भी अलग अलग होने से आते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर कुछ फ्लॉज हैं जिसके कारण जो है हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आज कमी आई। पूरे ये नहीं मैं पर्टिकुलर रोड की बात कर रहा हूँ, चंडक मंडी रोड। ओवरऑल आप देखें कि ठेकेदार लोग जो होते हैं वो पहले काम लेते हैं, उसके बाद वो अर्थ कटिंग करते हैं, अर्थ कटिंग करने के बाद काम छोड़ देते हैं, 2 साल 3 साल निकल जाते हैं, कास्ट एक्सीलेट हो जाती है और उसके बाद वही धीमी गति से काम चलना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली स्टेज आती है जी इस रोड में पैसा नहीं है और वो पैसा निकल जाता है, हफ्ता हफ्ता करके वो पैसा बाई दिस वे आर दैट से निकाल लेते हैं। लास्ट जो काम बचता है वो ब्लैक टॉपिंग का होता है। तो ब्लैक टॉपिंग के लिए पैसा बचता है। उसमें होता ये है कि आप एक रोड बना रहे हो, उसमें एक कलवट बनाना है आपने। जब कलवट बन रहा होता है तो वो ठेकेदार को पता होता है या कंसर्न जेई को पता होता है, ना एक्सिन को पता होता है, ना AEE को पता है, ना पब्लिक को पता होता है। तो मैं समझता हूँ जब पब्लिक गारंटी एक्ट आया है आपके सामने, तो आप लोगों को ये सारी चीजें पब्लिक के सामने डिस्प्ले करनी चाहिए। अगर चंडक मंडी के रोड के लिए आया है, मंडी में भी आप एक बोर्ड लगा दो, आप 80 लाख रुपया खर्च करें, 1,000 रुपये का एक बोर्ड लगेगा, उसमें आप लगा दो कि इस साल का हमने 80 लाख रुपया रखा है, इसमें ये होना है। एक बोर्ड पुंछ में लग जाए, यहाँ से लोग भी देखें और वो भी लोग देखें। होता यह है कि इंटरनल काम चलता है, टेंडर लगते हैं, मुझे क्या पता, आपको क्या पता, और पब्लिक को क्या पता होता है कि टेंडर में कितना अमाउंट है कितना है नहीं, वो कुछ लोगों को ही पता होता है। अब आप साईं बाबा मीरा रोड की बात कर लेते, वहाँ पर एक डंगा लगना है, वो जेई को पता है, मुझे नहीं पता, ना एक्सिन को पता है, ना डीसी साहब को पता है, ना किसी दूसरे बंदे को पता है। वही डंगा दूसरे साल वो जाके एक जेई मिलता है, एक तो मिलता है उस दंगे को, उसकी मेयर पे निकाल ली जाती है, उसका दोबारा बिल निकल जाता है। तो ये कुछ फ्लॉ हैं जो अगर दूर किए जाएं तो हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सकती है। और मैंने अक्सर देखा है, ये पहली बार पुंछ की हिस्ट्री में यासीन चौधरी साहब जब से आए उन्होंने बताड़ के पुल पर जो लुक डलवाई है वो अभी तक रुकी हुई है। और पैच वर्क पुंछ में जो हुआ है पहली बार हिस्ट्री में, मेरी 60 साल उम्र हो गई है, मैंने देखा है पैच वर्क पहली बार जो उन्होंने डीसी ऑफिस से लेके बस स्टैंड तक करवाया है और बीच में 2-4 बच लगे हैं, वो इस वक्त तक ठीक है। उसको ही कंट्रैक्टर अगर रुक डालता है, अगर वो लुक उखड़ जाती है तो उसको पेनल्टी पड़नी चाहिए। तो वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट का था, अब गवर्नर रूल है, आज की डेट में भी रूल तो वही है। लेकिन होता ऐसा है, यहाँ हमने देखा, आपने देखा, सभी लोग देखते हैं, एक दिन लुक पड़ती है, दूसरे दिन वो लुक उखड़ जाती है। होता यह है कि जहाँ पर लुक का प्लांट है, प्लांट में क्या किया जाता है, बस स्टैंड के अंदर जितना गाड़ियों से पुराना मोबाइल निकाला जाता है, तो उसको मिक्स करके जो उसको तार पिन डालना चाहिए, जो लुक का मटेरियल जो होता है, जो उसमें पड़ते हैं इंग्रेडिएंट, वो नहीं होते हैं, ऐसे ही जो है मतलब सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो है वो जाके फैला दिया जाता है और वो तो थोड़े दिन के बाद उखड़ जाता है, जिसका नतीजा जो है पब्लिक को भुगतना पड़ता है। और दूसरी बात जो जहाँ तक आपने चंडक मंडी रोड की बात, हमने देखा है हमारे बहुत बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। होता क्या है, रात के 12 बजे लुक डाली जाती है, जो खड्डे होते हैं उनमें सिंपल जो है नॉर्मल बजरी जो है भर दी जाती है, उसको ऊपर से उसके ऊपर रोलर फेर दिया जाता है और दूसरे दिन उस पे ऊपर आधा इंच, मतलब जो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक लुक पड़नी चाहिए 3 इंच 4 इंच 5 इंच, वो नहीं पड़ती है, आधा इंच डाल के उसके ऊपर जो है ब्लैक टॉपिंग कर दी जाती है। नतीजे के तौर पर दूसरे दिन 4 दिन, हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद वो खड्डे फिर पड़ जाते हैं। इसी तरह थ्रू आउट था हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा है, यही चल रहा है सिलसिला। और उसमें हमारे डीसी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, जब से वो आए हैं उन्होंने बहुत हिस्टोरिकल काम किए। पुंछ छोड़ के आप देखें धरोहर है हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी, और पीछे भी जनरेशन ये 3 कम्युनिटीज ने ये मिलकर बनाया है। उसमें सिख कम्युनिटी के राजा भी शामिल थे, मोहम्मदन कम्युनिटी के और हिंदू राजाओं ने मिलकर ये हमारा बनाया था। आज अगर इंडिया गवर्नमेंट हजारों करोड़ रुपया इस पर खर्च करे, ऐसा किला नहीं बन सकता। आज आप देखें कि लेक के पास से जब गुजरता है आदमी, ये हमारी धरोहर है, आपके पास कोई आएगा पुंछ से, उनके पास आएगा, किसी दूसरे के पास आएगा, हमारा कोई रिलेटिव दिल्ली से बम्बे, हमारे पास कोई चीज नहीं दिखाने के लिए, एक ही किला है जिसको हम दिखाने के लिए ले जाएंगे, हमारे बुजुर्ग ने बनाया हुआ है। तो ये हम सब लोगों को मिलकर अप्रिशिएट करना चाहिए, जो ऑफिसर अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि डीसी का काम नहीं है साइड पर जाना, ये कंसर्न डिपार्टमेंट का काम है। तो कंसर्न डिपार्टमेंट वाले लोगों को अकाउंटेबल होना चाहिए। मैं तो कहूँगा डीसी साहब को बुलाकर इन लोगों की एक मीटिंग लेनी चाहिए और जो भी इसमें कल्प्रिट है रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए, हमें भी ये अकाउंटेबल होना चाहिए कि हमारे इलाके में काम होना चाहिए। ठेकेदार है देन व्हाट, उसको पैसा मिलता है, उसको ठीक ढंग से काम करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। जब तक समाज सामने नहीं आएगा, जब समाज के लोग सामने नहीं आएंगे, ये चीज़ें जो है वो पॉइंट आउट नहीं करेंगे, तब तक हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं हो सकता। ये जो चंडक मंडी सड़क है, यकीनन इन्होंने जो बातें आपके सामने कही हैं कि क्या इंतज़ामिया की जानिब से इन चीज़ों पर नज़र रखी जाती है, जैसे यही सड़क, क्योंकि आज हम बुढ़ा अमरनाथ के हवाले से ही बात कर रहे हैं और इसके लिए मेन सड़क है जो हमारी चंडक से मंडी है, इसमें ये अभी लुक डाली गई है, मसलन ये 10 दिन भी नहीं हुए। तो अगर आज आप मंडी की तरफ जाएंगे तो वही हालत होगी। इस पर क्या इंतज़ामिया की जानिब से इस पर निगरानी नहीं रखी, क्या वजह है कि ठेकेदार इस तरह का काम कर रहे हैं? नहीं, कुछ बातें इन्होंने बिल्कुल सही कही कि मतलब कि जो ठेकेदार होते हैं वो मतलब सही तरीके से नहीं करते हैं। टेम्परेचर जो होता है, लुक का जो टेम्परेचर होता है उसको सही टेम्परेचर पे नहीं उसको ले करते हैं।
साथ में जो मटेरियल्स जो उसमें डालना होता है उसमें भी थोड़ी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं। ये तो कंसर्न जेई और जो कंसर्न एडब्ल्यू है उनका काम होता है। अगर अभी देखा गया, अगर ऐसा अगर फिर से नोटिस किया गया, क्योंकि ये तो अभी काम चल रहा था, मैं भी पिछले हफ्ते मैंने विजिट किया था, उस टाइम थोड़ा काम रह गया था। अगर फिर कोई नोटिस में ऐसी चीज़ आती है कि अगर फिर से अगर निकल गई या खड्डे पड़ गए हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अभी तो जस्ट काम ही हुआ है, अभी तो हमने कोई पेमेंट भी नहीं की है। तो अगर ऐसा कोई नोटिस में कोई भी चीज़ आती है, क्योंकि अभी तो यात्रा अभी स्टार्ट हुई है, कल से स्टार्ट हुई है, मैंने खुद भी 2-3 बार मैंने जाना है, विजिट करना है, एक एक चीज़ देखी जाएगी, किसी की कोताही पकड़ी जाएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मलिक साहब आप कुछ कह रहे हैं? देखिए लोकेश जी हमारे भाई हैं, इन्होंने कहा कि फंड्स की कमी नहीं है, तो मैं ये समझूंगा कि मंडी से चंडक तक कितना बड़ा फासला है रोड का। आप बताएं कि 80 लाख में आज के इस ज़माने में क्या होता, आज कहाँ हम जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। मेरा एक गांव अड़ाई है जहाँ पर तीनों पंचायत हैं, तो मैं जो इससे पहले कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे आरएनबी के थे, जब मैं उनके पास गया तो डीपीआर बना के तो उन्होंने वो ब्रिज जो है 2 करोड़ 20 लाख का मंजूर किया मेरी गुजारिश पर। तो कहने का मकसद ये है कि एक ब्रिज थोड़े से नाले पर 2 करोड़ कुछ लाख का अगर सेक्शन हो सकता है तो इतनी बड़ी रोड 80 लाख, और इसमें शक नहीं है ठेकेदारों की, मैं कोई हमायत नहीं करता या कोई कुछ ऐसे वाकई ठेकेदार है कि हम अगर दिन को जा रहे हैं, बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी लुक पड़ रही है, वो लुक जैसी पड़ रही है तो बारिश की वजह से वो उखड़ भी रही है। तो ये हमारी इंतज़ामिया जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जो है वो अपनी ईमानदारी से काम कर रही है। हमारे लिए भी खुशी की बात है ज़िला पुंछ के लिए कि जब से आए हैं वो रोडों के, हमारी पुंछ की क्या हालत थी, जो आज मंडी में या लोरन में खड्डे पड़े हैं, ये पुंछ शहर में थे। यहाँ के ब्रिज की हालत क्या थी, शेर कश्मीर ब्रिज की क्या हालत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर जगह पे ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ का पहुँचना, हर जगह पे एडिशनल ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ का पहुँचना मुनासिब नहीं है। वहाँ हमारे उन लोगों को भी काम करना चाहिए जिनकी ड्यूटियाँ हैं, वो ईमानदारी से काम करें। और इस पर मैं चाहता हूँ कि एक तो फंड्स की कमी को दूर किया जाए और पैसा ठीक ठाक। अब मंडी से चंडक रोड का आपने हवाला दिया तो इसमें मेरे हिसाब से 80 लाख में कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो मैं समझूंगा कि अच्छा खासा पैसा लगा के इस रोड को एक ही बार इतना बेहतरीन किया जाए ताकि लोग आने जाने के काबिल हो। इसी रोड को नहीं, लोरन वाली रोड को भी, गाँव मेरे अड़ाई की रोड को भी। देखो आप, मेरी गाँव अड़ाई की रोड बिल्कुल बह चुकी है, उस पर इन्होंने जो फर्स्ट टेंडर निकाला है वो भी 80 लाख का है, जिसमें खाली लुक नहीं पड़नी है, सिर्फ उसको मतलब उसकी बाउंड्री लगानी है उस रोड की। मुझे नहीं लगता कि उसमें भी 80 लाख में ठेकेदार जो है वो, मुझे लगता है कि अगर 80 लाख का टेंडर है वो उसको 50 या 60 में उठा लेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सबकी जिम्मेवारी और ख़ास करके हमारी इंतज़ामिया की जिम्मेवारी बनती है कि वो ऐसी टीम बनाकर एक टीम मुकर करे जो ऐसी चीज़ें देखे, ठेकेदारों पे निगाह रखी जाए जो सही काम ना करे। जो इंतज़ामिया में हमारे कुछ लोग सही काम नहीं कर पाते, चाहे वो यही हों, ए हों या कोई और हो, उन पे निगाह रखी जाए। तो मेरे कहने का मकसद ये, हम सबको जवाब देना होगा किस तरह से इस इलाके की तरक्की हो सके। एक मसला और है हमारा, ये जो द्रोणी नाला पुल है, ये 2014 में यहाँ सैलाब आया। इस सैलाब के दौरान एक साइड का हिस्सा जो है वो बैठ गया। उस वक्त जंगी सतह पर हमारी आर्मी ने काम किया और एक आरजी पुल वहाँ लगाया। 2014 की बात है, आप शायद ये बीआरओ के पास है ये वाला पुल जो है। तो हमने कई बार इस मसले को उठाया है और हमारे सियासी समाजी शख्सियात ने भी इस पर बात की है। बीआरओ इस मामले में अभी तक किसी तरह से नज़र नहीं आ रही। क्या इंतज़ामिया इसके साथ राब्ते में है इस पुल के हवाले से? ये पुल आप देखेंगे, ये नंगाली साहब, सई मीरा बख्श और बुड्ढा अमरनाथ सारी जगहों को टच करता है और बड़ा अहम पुल है। ये मसला मैंने बीआरओ से डिस्कस किया। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मतलब कि जम्मू पुंछ का नया हाईवे का काम चल रहा है, उसके तहत यहाँ एक और नया इसी नाले पे ब्रिज बनना है। तो उन्होंने कहा कि चूँकि नया ब्रिज बनना है इसलिए उसको नया और बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे वो काम चल रहा है, अभी जैसे यहाँ पहुँचेंगे तो ये नया ब्रिज बन जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। और जो बफलियाज फागला मंडी, ये पिछले 70 सालों से ज़ेर तामीर है। इस पर 2-3 एजेंसियों ने काम किया है। अब ये शायद पीडब्ल्यूडी के पास आई है, हमारे महकमा तामीरात आमद। लेकिन क्या इस बार हम उम्मीद रखेंगे कि ये सड़क जो है वो मुकम्मल? बिल्कुल, इसका अर्थ वर्क बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, प्रोटेक्शन वर्क इसका चल रहा है अभी, और बीटी वर्क इसका कुछ जगह काम हो रहा है अभी,
दिसंबर तक ये रोड बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी इस साल। अच्छा सर, ये इन्होंने एक चीज़ की तरफ इशारा दिया था, ये जो सुरनकोट से पूंछ की तरफ हमारी जो 4 लाइन सड़क बन रही है, इसमें दिन में काम हो रहा है और अक्सर यहाँ देखा गया है कि जाम लग जाते हैं, लोगों को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम तक जो इस बारे में लोगों के मुतालबात हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर तामीराती काम रात में करवाया जाए, क्या ये मुमकिन है? नहीं, हमने तो पीछे डिवकॉम साहब भी यहाँ आए थे, तो हमने जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है उनको डायरेक्शन दी थी, जैसे आप अर्थ कटिंग करते हो साथ साथ ही उसका मलबा उठा लेना चाहिए, साथ साथ इसको क्लियर करें, उसके बाद आगे काम करें। तो हमने डायरेक्शन दी हुई है, हम वही फॉलो करेंगे। रात को शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि पहाड़ी एरिया है काफ़ी, वहाँ पर पत्थर वगैरह काफ़ी गिरते हैं, तो लेकिन हमने स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी है क्योंकि जो भी होता है ये जो मिट्टी वगैरह रोड पे इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, आपने वो कटाई की साथ साथ में उठाएं इसको कि जाम शाम की समस्या। फरीद मलिक साहब, बिल्कुल मुख्तसर क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो चुका है, तो आप बताएं इसके लिए क्या रकूमत वगैरह वागुजार होंगे? अभी जो है इन्होंने 80 लाख का कुछ टेंडर निकाला है, जिसके लिए 80 लाख रुपया हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ की कोशिशों से आया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो मतलब उसकी जो साइट की जो प्लानिंग है वही पूरी होगी। इसमें लुक पड़ने का अभी तक जो 74 लाख का अलग से रखा है वो हमारा पैसा अभी नहीं आया। तो मैं गुजारिश करूंगा आपके हमारे एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ भी बैठे हैं और डीसी साहब को आपके ज़रिए कि जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं थोड़ी मेहनत और करें तो हमारा अढ़ाई गांव जो है आपको पता है डिसेबल लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं, डिसेबल की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए पूरी हिंदुस्तान से यहाँ टीमें आई हैं, बड़ा कुछ उस पर जदोजहद हुई है। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को इंसाफ देने की हम सबको ज़रूरत है। तो मैं आज के हवाले से यही कहूँगा कि जहाँ तक आपने ये ब्रिज की बात की सर, इसमें मेरी आपके ज़रिए एडिशनल साहब से गुजारिश होगी कि हमारा PWD की बात की, इन्होंने PMGSY की बात की, करनी चाहिए, वो भी इसमें मुलव्वस हैं। और मैं समझूंगा कि हमारा जो गिरफ्त महकमा है, गिरफ्त महकमा जो है, इनसे अगर कोई बात की जाए या कोई पब्लिकली कोई मतलब कोई इनसे बात करे, जनाब ये रोड बोला हम आपके अंडर नहीं है, हम तो सीधा दिल्ली के अंडर आते हैं, तो इस तरीके से ये हिसाब किताब देने में या कोई बात करने में इतने खुश नहीं होते। कोई अच्छा नेक ऑफिसर आ जाए तो वो चलो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से लोकेश जी ने बात की है PWD की, ये सेम कंडीशन जो है हमारे गिरफ्त में भी यही है। तो कहने का मतलब ये है कि जवाबदार जितना PWD है, इतना PMGSY भी है, इतना ही गिरफ्त भी है। तो मैं समझूंगा कि हमारे एडिशनल साहब इसमें एक टीम बनाएं। डिप्टी कमिश्नर पुंछ से भी मेरी गुजारिश होगी कि एक टीम बनाकर ये जो पैच सिस्टम है इसको बेहतरीन तरीके से, अगर कोई इस किस्म का आप टेंडर भी लगाते हैं तो इसको एक टीम बनाकर इसको चेक भी किया जाए, इसको देखा जाए। इसके अलावा महकमा गिरफ्त के ऊपर आज हमारी पोजीशन ये है, मैं लोकेश जी से भी ये गुजारिश करूंगा कि हमको आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारा अगर एक कोई रोड पे अगर कोई बंदा लगना है तो पहली बात तो उसको लगाते ही नहीं है रोड में, मतलब काम करने के लिए बाहर से लाते हैं अपनी लेबर को। ये हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है, मेरी एक ज़मीन से रोड जा रही है तो मैं गिरफ्त से गुजारिश करूंगा जनाब मेरे बंदे 2-4 को लगा लें, वो कभी नहीं लगाएंगे। अच्छा, अगर आप उनके पास जाएंगे, इस वक्त के जो मुतलका OC साहब हैं, जहाँ हमने PWD की बात की, वहाँ खुल के ये बात करनी चाहिए। मुतलका OC साहब ये ज़रूर कहेंगे कि आप DC के पास चले जाएँ, DC जो करेगा करेगा, मेरे हाथ मैं कुछ नहीं कर सकता, हम सीधा दिल्ली से बात करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इंतज़ामिया हमारी ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसे कि हमें एक बंदे को मजदूर लगाने के लिए भी कितनी बड़ी परेशानी है और इतनी दिक्कत आ रही है। तो मैं समझूंगा कि ये रोडें जो हैं, ये रोड्स के पैच जो है, इस पर भी एक टीम बनाई जाए जो चेक किया करे कि वाकई ही सही। पहले तो पैच लगाना ही नहीं चाहिए, अगर लगाते हैं तो इस पे ज़रूरी नज़र रखने की ज़रूरत है। शुक्रिया। बोल एक बात जो मैं भूल गया था वो मैं करता चलूँ यहाँ पर, बहुत मुश्किल काम जो सुरनकोट बखरियाल रोड का था, पिछले कई सालों से चल रहा था, वो एक पर्टिकुलर कंपनी को मिला था। कंपनी वाले लोग जो थे वानापानी कर रहे थे, कई सालों से वो काम नहीं कर रहे थे और इतनी खस्ता हालत थी, मतलब 5-5 फुट के जो है खड्डे थे पड़े हुए, तो लोग उस रोड पर चल नहीं सकते थे। इनकी पर्सनल इंटरफेरेंस की वजह से और इन्होंने खुद उस रोड को मॉनिटर किया और जाके उस कंपनी से टेकअप किया और उसके बाद जेडी के गवर्नमेंट कमिश्नर PWD से टेकअप करने के बाद आज उस पर जो है BT हो गई है और वो एक अच्छी रोड बन गई है, हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस की रोड है, मुगल रोड को कनेक्ट करती है सुरनकोट से बखरियाल। तो मैं बिल्कुल तारीखी रोड है, मुबारकबाद देता हूँ कि उनके पर्सनल इंटरफेरेंस की वजह से ये काम हुआ है। हमारे इलाके में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी तो हमारा इलाका खुशहाल होगा। हम इसी दुआ के साथ यहाँ से आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, आखिरी सवाल है, ये सवाल नहीं बल्कि गुजारिश है। हम लोग पिछले मैं सोचता हूँ 3-4 हफ्तों से कोशिश कर रहे थे कि हम बुड्ढा अमरनाथ यात्रा से पहले ये वाला प्रोग्राम करें। मकसद रेडियो का यही रहता है कि हम लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाएँ और उनको इस बात के लिए मेंटली तौर पर तैयार रखें कि क्या वजूहात हैं।
لیکن آفیسر اویلیبل نہیں ہو رہے ہیں. میں نے ایکسین صاحب جو ہمارے تاکہ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا. انہوں نے ایک دم سے جواب دیا کہ یہ سڑک میرے پاس نہیں ہے. انہوں نے بتایا جی یہ سڑک سرن کوٹ میں ہے اور ایکسین صاحب ان کے پاس ہے. ان کے ساتھ جب رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے 3 مثلا بار ڈیٹ دی کہ ہم اس طرح، اور این اسی ٹائم یہاں پہنچنے کے وقت وہ نہیں آئے. مجبوراً ہمیں آپ سے رسائی کرنی پڑی. آپ یہاں آئے اور بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے، ہمارا ریڈیو بھی اور ہم لوگ بھی، کہ آپ نے ہمارے مسائل سنے. ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں اور ہماری جو اسکیمیں ہیں جو گورنمنٹ اس وقت کام کر رہی ہے تاکہ ان تک پہنچ سکے کہ عام آدمی. اس لیے ہم گزارش کریں گے کہ آپ آفیسران کو اس متعلق دیں کہ جب ہم انہیں بلاتے ہیں تو کم سے کم یہاں پر آ کر لوگوں کو ایکچوئل کیا پوزیشن ہے وہ بتائیں. بالکل کوئی بات نہیں. ہم ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو سبھی آفیسرز کو ڈائریکشن دے دیں گے کہ جو پبلک انٹرسٹ کے جو بھی ایشوز ہیں جو مطلب پبلک کے سامنے آپ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، جس ڈپارٹمنٹ کو پرٹین کرتے ہیں، ہم ان کو کہیں گے کہ وہ آ کے آپ سے پروگرام کریں گے. یہاں پر آپ ہم کو بھی ڈائریکٹ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم ان کو اپنے آفس یہاں سے ڈائریکشن دیں گے ان کو، اگر وہ نہیں کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تو سامعین، آپ نے آج کی ہماری گفتگو سنی. امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جو نئے مسائل بھی آپ کے ذہن میں ہیں آپ ہمارے ریڈیو کے ایڈریس پر ایک خط لکھ کر بھیج سکتے ہیں. ٹیلی فون پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آج بس اتنا ہی. دیجیے اجازت. خدا حافظ.